جب انسان دنیاوی مشکلات میں گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل پر نا امیدی کا سایہ پڑتا ہے، مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ نا امیدی مومن کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ جس کا رب اللہ تعالیٰ ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اور تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ جب ہم سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ یہ آیت مومن کے دل میں امید کا چراغ روشن کر دیتی ہے، چاہے حالات کتنے بھی اندھیرے ہوں۔ ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ کا کرم کسی بھی لمحے برس سکتا ہے۔ حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر جب نکلے اور مچھلی کے پیٹ تک پہنچے تو انہوں نے 3 اندھیروں کا سامنا کیا: رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مگر ان کے دل میں ایک نور تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے جو آج تک مصیبت زدہ کے دلوں کو سکون دیتے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی۔ یہی ہے ایمان کی روشنی۔ جب انسان اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمندر میں بھی بہار کر دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا۔ بیمار تھے، جسم میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا عالم تھا، سجدے میں آنسو گراتے تھے۔ حضرت ایوب کی آزمائش ایسی تھی جس سے شاید کوئی اور نہ گزر سکا۔ جسم بیمار تھا، اولاد چلی گئی تھی، مال و دولت ختم ہو گیا تھا، مگر زبان سے شکوہ نہیں نکلا۔ صرف یہ کہا کہ اور اللہ میرے لیے رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو شفا دی۔ یہ ہے صبر کا درجہ۔ جب درد کے باوجود دل کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ حضرت ذکریا نے بزرگ نبی جو کہ مسجد میں اپنی ساری زندگی گزاری، انہوں نے حضرت ذکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بیٹے کے لیے دعا کی۔ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے اب عمر ہو گئی ہے، مگر انہوں نے فرمایا میرا رب جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دعا کبھی دیر سے نہیں، بس اپنے وقت پر قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، جب فرشتوں نے حضرت سارہ کو بتایا کہ انہیں اولاد ملے گی تو وہ ہنس پڑی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور بوڑھی کو بیٹا۔ مگر فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر حیران ہو؟ یہی ایمان ہے، جہاں عقل رک جائے وہاں یقین شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندو نا امید نہ ہو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ نا امیدی دراصل شیطان کا ہتھیار ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، ہماری ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی بھی ہمیں اس مصیبت پریشانی سے نہیں نکال سکتا، سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ مگر جو دل صرف ایک بار اللہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، تو پھر اس کی زندگی میں سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی اندھیرے میں ہیں، کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی رشتوں کے مسئلے مسائل میں ہے، کوئی مالی تنگی میں ہے، کوئی اولاد کا نہ ہونا تکلیف دے رہا ہے اور کوئی اولاد ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے۔ بس یہ یاد رکھ لیا کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی مایوسی نہیں لی۔ ہم بھی سمندر میں ہیں، ہمارے حالات ویسے نہ ہوں، لیکن تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرنے کی طاقت وہی رکھنی ہے جو ہمارے پیارے پیغمبروں نے رکھی۔ جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لے لیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لے لیں، حضرت ذکریا علیہ السلام کی مثال لے لیں۔
ये सब अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं जिन्होंने ना सिर्फ सब्र किया बल्कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखा, अल्लाह ताला से दुआएँ की और अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को कबूल करके ये बताया है हमें कि ए मोमिनो तुम गम ना करो। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के दिल में से निकली हुई दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। परेशान नहीं होना, तकलीफ़ में नहीं आना, अपनी मुश्किल परेशानी से डर नहीं जाना, बल्कि इस बात का यकीन रखना है कि मेरा रब बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। वो अता करने वाला है, वो देने वाला है, वो कभी भी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला को पुकारता है ना, तो अल्लाह ताला उसको फ़ौरन जवाब देते हैं। और ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होते हैं, अल्लाह ताला से दुआएँ करते हैं, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर जब उनकी दुआ कबूल होती है ना, तो वो सच में इस बात पर मुकम्मल तौर पे यकीन कर लेते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए, कोई पहाड़ भी बड़े से बड़ा हिलाना पड़ जाए, तो अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन कर लिया जाए, तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है। अल्लाह ताला ने हमें वो ताकतें अता की हुई हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो रहनुमाई अता की हुई है। हम जब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तो ये सारे वाक़यात हमें कुरान पाक में मिलते हैं। समंदर में मछली, मछली के पेट में अंधेरा और वहाँ पे भी अल्लाह ताला को याद करना। ये एक ईमान की रोशनी नहीं तो और फिर क्या है? बीमार नबी हैं, सब्र है और फिर अल्लाह ताला उन पर आसमानी नूर बरसा देते हैं और उनकी बीमारी शिफ़ा में बदल जाती है। दोबारा से वो जवान हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करते हैं, उनको सेहत, तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला वो सब चीज़ें उनको वापस लौटा देते हैं, जो उनसे चली गई थी। जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए वक़्फ़ कर देता है, मस्जिद में सारी ज़िंदगी गुज़ारता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। बल्कि जब वो सजदे में जाके दुआ करते हैं ना, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को भी कबूल कर लेते हैं। चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनकी बीवी बाँझ हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है ना, वो तो ऐसे-ऐसे मोज़े कर सकती है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हज़रत सारा मुस्कुरा देती हैं फ़रिश्ते की बातों को सुन के कि मैं बुढ़ापे में बच्चा पैदा करूँगी, तो फिर सजदा शुक्र अदा करती हैं। अल्लाह ताला उनको बुढ़ापे में औलाद अता करते हैं। हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अगर पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई देते हैं और ये सब रहनुमाई हमारे लिए है। अल्लाह ताला हमें बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर बड़े से बड़ा मुश्किल वक़्त भी आ जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी आ जाए, बड़ी से बड़ी परेशानी भी आ जाए, तो अल्लाह ताला ने उसको हल किया हुआ है। तो हमारी चीज़ों को हल करना अल्लाह ताला के तो लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला तो कुल कायनात को बनाने वाले हैं। हम अपनी सोचों को क्यों नहीं बड़ा करते? हम भी थोड़ा बड़ा सोच सकते हैं। हम अपनी ही सोच के मुताबिक सोच रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है, कोई रास्ता नहीं रहा, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे इस हालात से गुज़रना पड़ रहा है। बस अगर वहाँ पे ये सोच लिया जाए ना कि मेरे रब का करम सबसे बढ़कर है, वो अता करने वाला है, वो देने वाला है, वो मरियम को बग़ैर बाप के औलाद दे रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के दुनिया में आ रहे हैं। तो मेरे रब की कुदरत से बड़ा तो कोई भी नहीं कादिर। मेरा रब रहमान है, रहीम है, करीम है, अज़ीम है। वो अता करने वाला है। हम लोग गुनहगार हैं, बदकार हैं, बुरे हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहों में फँसे हुए हैं। हम तो अल्लाह ताला का एक भी सजदा सही तरीके से अदा नहीं कर रहे होते। मतलब के लिए नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, मतलब के लिए अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम अल्लाह ताला को जाके क्या जवाब देंगे? क्या हमने अल्लाह ताला का हक अदा किया? क्या हमने उस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत की जिसका वो लायक है? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों के लिए लगे रहते हैं और वो भी सही तरीके से नहीं हम लगे होते, बल्कि शक, वहम और अजीब-सी कशमकश में फँस जाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव वसवसे, बहुत सारे नेगेटिव ख़यालात शैतान हमारे दिल में डाल रहा होता है और हम उसकी बातों को सुन रहे होते हैं और अपने रब की बात को हम नहीं सुन रहे होते। जबकि मेरा रब बार-बार यही कह रहा है कि ए इंसानों मुझसे माँगो, मैं देने वाला हूँ। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं तहज्जुद के टाइम पे कि ए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें अता करूँगा।
और जो लोग सजदे में जाते हैं तहज्जुद के टाइम पे, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दिल की बातें करते हैं, अल्लाह ताला के राज़ों को जानते हैं, अल्लाह ताला से अटैच हो जाते हैं, अल्लाह ताला से अपनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनको अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला वहाँ से मदद का वसीला बना देते हैं, जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। और जब इंसान की ज़िंदगी में आसानी आती है, रहमत आती है, अल्लाह ताला इंसान की उस मुश्किल को जो उसके लिए नामुमकिन हो चुकी होती है, जिस पे वो हार चुका होता है, टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, नाउम्मीद हो चुका होता है, तो अल्लाह ताला वहाँ से रोशनी की किरण को जगमगा देते हैं, जहाँ पे इंसान की कभी सोच भी नहीं जाती। और फिर इंसान शुक्र अदा करता है कि बेशक मेरा रब अता करने वाला है, वो देने वाला है और वो देता है। और बेशक, बेशक अल्लाह ताला अता करते हैं। सच्चे दिल से माँगना है। इस बात पे मुकम्मल यकीन कर लेना है कि अल्लाह ताला से बढ़कर कोई भी नहीं है जो दे सके। अल्लाह ताला अता करते हैं मेरी बहनों, कभी भी नाउम्मीद मत हो। मेरी बहनें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, नाउम्मीद हो जाती हैं, कोशिश करना छोड़ देती हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं, परेशान होती हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि अल्लाह ताला बहुत अज़ीम है, बहुत बड़े हैं, कादिर मुतलिक हैं। अता करते हैं, देते हैं, किसको जो माँगता है, सच्चे दिल के साथ माँगता है, अपने अंदर की सफाई करके हमने माँगना है। हमने तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं करना, बल्कि अपने रब के साथ मोहब्बत करना है, प्यार करना है, अपने रब से माँगना है, अपने रब से उम्मीद रखनी है। जिस तरह एक बच्चे को अपनी माँ से उम्मीद होती है ना, वो कितने प्यार से अपनी माँ को देखता है और कितने प्यार से वो इस चीज़ पे यकीन रखता है कि मेरी माँ मुझे कभी भी भूखा नहीं रखेगी। एक वो बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कह नहीं सकता, जिसको कोई एहसास नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जिसको सोच नहीं है, वो बच्चा इतनी उम्मीद रख लेता है कि मेरी माँ मुझे कभी भी भूखा नहीं सुलाएगी। तो वो रब जो हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? मेरी बहनों, नाउम्मीद मत हुआ करो, मत नाउम्मीद हो। मेरा रब बहुत बड़ा है, वो अता करने वाला है, हम सबको सच्चे दिल के साथ अपने रब से अटैच होना है। दिल में जितनी भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, नफ़रतें, वसवसे और अजीब-सी सोचें हैं, उन सब को दिल से निकाल देना है। समझदारी से काम को लेना है, समझ के साथ ज़िंदगी को जीना है। बहुत सारी बातों में इंसान उलझ के रह जाता है। इंसान को समझ ही नहीं होती कि क्या इंसान के हक़ में बेहतर है और क्या चीज़ इंसान के हक़ में बेहतर नहीं है। क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं होता। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, जब मुझे बात करती हैं तो मुझे बताती हैं कि आपी मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने दिल की बात कर सकूँ। तो मैं उन्हें कहती हूँ मेरी बहनों, ये तो अल्लाह ताला ने आपको हक़ दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने औरत को, बीवी को नौकरानी नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने बीवी को एक साथ निभाने वाली, साथ देने वाली और साथ चलने वाली बनाया है। एक बीवी की मोहब्बत एक मर्द को इतना ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिसका इंसान को वो अब जाके समझ आती है, ख़ास तौर पे हस्बैंड्स को जब वो बुढ़ापे में पहुँचते हैं, तब जाके उन्हें बीवी की कदर महसूस होती है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल के साथ अपने रब के साथ अटैच रहें, अपनी ज़िंदगी के हर मामलात को अपने रब के साथ डिस्कस करें, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ़ इस मुश्किल तकलीफ़ और परेशानी में आसानी अता करते हैं, बल्कि इंसान को बेहतरीन रहनुमाई भी अता करते हैं। इंसान के लिए मसले मसाइल को फ़ेस करना आसान हो जाता है। जब इंसान अपने रब से रजू करता है, अपने रब से दुआ करता है, अपने रब के साथ अटैच रहता है, अपने मसले मसाइल को समझने के लिए कोशिश करता रहता है, अपने लिए नॉलेज को इकट्ठा करता रहता है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियाँ आती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारना कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक दूसरे के हकूक़ को अदा करना, एक दूसरे को इज़्ज़त देना, एक दूसरे के साथ बाहमी रज़ामंदी के साथ चलना, ये है शादीशुदा ज़िंदगी। ना कि मुश्किलात में फँस के, तकलीफ़ों में फँस के, परेशानियों में फँस के एक-दूसरे के लिए अज़ियत बन के ज़िंदगी को गुज़ारना। जब इंसान किसी के साथ अटैच होता है, चाहे बीवी हो, चाहे मर्द हो, स्पाउस जब एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक-दूसरे की कदर करते हैं, एक-दूसरे के दिल की बातों को समझते हैं, तो ना सिर्फ़ ज़िंदगी काटना आसान हो जाता है, बल्कि ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। मेरी बहनें शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फँस जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के मामलात को सही करना है। परेशान रहती हैं, वसवसों में फँस जाती हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों को खुद अट्रैक्ट कर लेती हैं। क्योंकि शैतान का तो काम है ना वसवसे डालना।
اور شیطان ہی انسان کے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسوں میں آ کر انسان اتنا زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے کہ انسان بہت سارے ایسے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنے چاہیے، اور پھر جس تکلیف اور پریشانی میں وہ ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کاٹنا بھی بہت زیادہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اور زیادہ نا امیدی میں پھنس جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اور زیادہ خراب کر لیتا ہے۔ نا امیدی صرف ایک خیال نہیں ہے، ایک وہم نہیں ہے، بلکہ انسان کے پورے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جو انسان کو کئی تکلیفوں میں ڈال دیتی ہے۔ جب انسان نیگیٹو ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، تو انسان کے مائنڈ میں موجود پروٹیوٹری گلینڈ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جو کہ نیگیٹو کیمیکل ریلیز کرتا ہے، جس کا اثر خاص طور پہ مردوں کے تھائرائیڈ پہ اور عورتوں کے اووریز پہ ہوتا ہے، جس سے ان کا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے خواتین بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر عمر کے کئی سال انہی باتوں میں گزار دیتی ہیں، اور پھر جب ایک خاص ایج میں پہنچ جاتی ہیں، خاص طور پہ 40+ میں، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے، ہمیں میڈیسن کھانی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ عورت کو بہت ساری چیزوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، میچورٹی آ چکی ہوتی ہے، باتوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی پر امید ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ احساس ڈال دے کہ آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور جو انسان وقت رہتے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف آتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور اپنی ہر دکھ تکلیف پریشانی اپنے رب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے، اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نا امید نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کو اس مشکل، اس اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اس کی سوچ اور اس کی سمجھ بھی بڑھ جاتی ہے، اسے وہ آسانیاں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہیں جس کے لیے وہ کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ ناکام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت زیادہ آسانیاں ڈال دیتا ہے، اور ہمیشہ یہی میری بہنوں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرے۔ آج کی سٹوری میں جس بہن کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ اپنے ہسبینڈ کی پہلی وائف تھی، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی کے بعد ان کے ہسبینڈ کو ایک اولاد تھی ہونے والی، لیکن ڈیورنگ پریگنینسی ہی ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کا بیبی بھی ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تھرڈ شادی کی، تیسری شادی کر لی، اور تیسری شادی انہوں نے اپنی پہلی گرل فرینڈ کے ساتھ کی تھی، جو شادی سے پہلے ان کی فرینڈ تھی، اور ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی۔ وہ آلریڈی ایک بچی کی ماں تھیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ان سے شادی کر لی، وہ ان کو گھر لے کر آ گئے، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ ہی میری زندگی میں بہت ساری تکلیفیں چلنے لگ گئیں۔ کہتی ہیں اولاد کا نہ ہونا میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے ہر طرح کے علاج کروائے، ہر طرح کے ٹریٹمنٹ کروائے، ہر طرح کی میڈیسن کھا لی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی آپ ہی میں سجدوں میں جا کے روتی ہوتی تھی، دعائیں کرتی ہوتی تھی، اور کہتی تھی اس ڈر نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھتی تھی کہ میرے ہسبینڈ دوبارہ شادی کر لیں گے۔ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی، اکثر و بیشتر کہتی ہیں کہ وہ مجھے یہی کہتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، اور کہتی ہیں کہ میں بہت ساری آپی ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے میڈیسن کھاتی تھی، ڈاکٹرز کے جاتی تھی، بہت زیادہ علاج کرواتی تھی، اور کہتی ہیں کہ آپی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کے کہتی ہیں 15 سال ہو چکے تھے، اور اس دوران انہوں نے ایک شادی بھی کر لی تھی، اور کہتی ہیں کہ وہ صاحب امید بھی تھیں اور انہیں اولاد ہونے والی تھی، لیکن وہ اپنے میکے میں تھیں جہاں پہ ان کے گھر کے کچھ ایشوز ہوئے، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ان کو برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی اس کے بعد سے یہ تیسری شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھے، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی فرینڈ جو کہ شادی سے پہلے ان کی فرینڈ تھی، ان سے انہوں نے شادی کر لی، اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی۔ کہتی ہیں یہ ان کو لے کے گھر میں آ گئے، اور کہتی ہیں کہ ان کا ابھی گھر میں آنا مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ کہتی تھی یہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کہتے تھے تم میری سب سے اچھی بیوی ہو، تم میرا ساتھ نبھانے والی ہو، تم میرا خیال کرنے والی ہو، تم میرا احساس کرنے والی ہو، اور کہتی ہیں کہ انفیکٹ آپ ہی وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ گھر کا سارا کام مجھے کرواتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی یا اس کے کام کیے ہوئے ان کو پسند نہیں آتے تھے، یہ ہر چیز مجھ سے کرواتے تھے۔
अपना खाना भी मुझे बनवाते थे, उसके साथ-साथ इनके कपड़े, इनका ख़्याल करना, इनकी खिदमत करना, इनका सर दुबाना, इनकी टाँगें दुबाना, कहती हैं हर चीज़ आप ही मैं करती थी। वो उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटिंग पे जाया करते थे और उनको शॉपिंग भी करवा के देते थे, उनका ख़्याल भी करते थे, उनका एहसास भी करते थे, लेकिन मेरे साथ ये दावे करते थे कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहती हैं, "आप ही मुझे भी आउटिंग पे लेके जाते थे, मुझे भी शॉपिंग करवाते थे, लेकिन इनके सारे काम मैं किया करती थी।" कहती हैं, "आप ही ये मुझे यही क बार-बार एहसास दिलाते थे कि मुझे उसके हाथ का काम पसंद नहीं आता। लेकिन आप ही ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, क्योंकि वो तो मैडम अपने काम खुद ही कर लिया करती थी और इनके काम भी मुझे ही को करने पड़ते थे।" कहती, "चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, सबका सब मुझी को दिखना पड़ता था।" और कहती हैं, "पहले ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन कहती हैं जैसे आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया और ये जो नई ख़ातून लेकर आए हैं, ये साहिबे उम्मीद हो गईं और कहती हैं कि उनके बाद से जब इनको पता चला कि ये औलाद पैदा कर रही हैं, ये उनकी बहुत ज़्यादा ख़िदमत करते थे, बहुत एहसास और ख़्याल उनका बहुत ज़्यादा करते थे। इनफैक्ट ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। कहती हैं, "आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इस वज़ह से भी थी कि एक तो मुझे औलाद नहीं थी और दूसरा इनको जब अल्लाह ताला औलाद अता कर रहे थे और मेरे मियाँ उनके साथ इतने ज़्यादा अटैच थे कि उनका भी सारा काम मुझसे करवाते थे। मुझे उनकी नौकरानी बना के रख लिया था, मैं उनकी खिदमत करती थी, खाने से लेकर कहती हैं उनके कपड़े धोने तक सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। कहती हैं, "आप ही मैं भी औरत हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दिल में धड़कन है, मेरे भी दिल में जज़्बात हैं, मेरी भी ज़िंदगी है। मुझे तो इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं था, मैं पहले इतने अरसे तक इनकी ख़ादमा बन के रही।" और कहती हैं, "अपने ऊपर मैंने तवज्जो दे नहीं दी। नेगेटिव सोचों ने मुझे कहती हैं अंदर से तबाह करके रख दिया था और बुरे ख़्यालात ने कहती हैं कि मुझे इतना तकलीफ़ में डाल दिया था कि मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा?" कहती हैं कि आप ही बस मैं बहुत सारी परेशान रहती थी, बहुत सारी तकलीफ़ों में थी और कहती हैं कि अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती थी क्योंकि कर-कर के थक गई थी। दूसरे भी कब तक मेरी तकलीफ़ और परेशानी को समझते। कहती है हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना होता है। कोई किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। जो तकलीफ़ परेशानी इंसान के साथ चल रही होती है वो इंसान ही समझ सकता है या फिर उसका खुदा। और कहती हैं कि अल्लाह ताला तो आसानियाँ देने वाले हैं। कहती हैं आप ही मेरे हस्बैंड मुझे इतना इग्नोर करते थे कि आप मेरे पास भी नहीं सोते थे, बल्कि उनके साथ ही हर वक़्त अटैच रहते थे। उनकी बेटी का ख़्याल करना, उनका ख़्याल करना और कहती हैं कि ये उनका फ़र्ज़ भी था और उनको करना भी चाहिए था। लेकिन आप ही मुझे भी तो इंसान समझना चाहिए था ना, मैं भी इंसान थी। कहती हैं आप ही ये पूरा टाइम इन्होंने 2 ईदें आई थी, उस पे किसी भी ईद पे इन्होंने मुझ पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपनी उन वाइफ़ के साथ ये उन्हीं के घर में, उन्हीं के मेके में रहे। और वो अक्सर और बेशतर अपने मेके में रहती होती थी और ये भी उनके साथ वहीं पे रहते थे। कहती हैं कि आप ही मैं अकेली रहती थी, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते थे। मैं तकलीफ़ों में थी और मैं यही सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्यों हैं? ये मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? मैं अपनी ज़िंदगी खुद जाके जी लूँ। जो मेरे नसीब में है अगर मुझे औलाद नहीं मिल रही तो मुझे क्यों इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बाँध कर रखा हुआ है। कहती मैं आप ही पढ़ी लिखी थी, अपनी ज़िंदगी को खुद लेकर चल सकती थी, बल्कि इनके से अच्छी जॉब मैं करती होती थी और मेरी इनकम भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इनकी इनसिक्योरिटीज़ की वज़ह से मैंने वो जॉब को क्विट कर दिया था और इनके घर को सँभालने में लग गई थी और इनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि कहीं ये दूसरी शादी ना कर लें। कहती इन्होंने दूसरी भी नहीं, इन्होंने 3 शादियाँ की और कहती हैं कि जब वो बीवियाँ इनके साथ होती थी तो ये उनको बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे और मुझे इग्नोर कर देते थे। कहती हैं कि आप ही जब इनके घर बच्चे की वलादत हुई तो ये इन्हें पता चला कि इनका बेटा जो थोड़ा-सा डिसेबल है। कहती हैं कि आप ही ये मुझ पर शक करते थे कि पता नहीं शायद मैंने कोई जादू तवीज़ करवा दिए हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया है जिसकी वज़ह से इनके घर ऐसी औलाद हुई है। कहती हैं ये तो अल्लाह ताला की अता है, वो जब चाहे जैसे चाहे इंसान को दुनिया में लेकर आए। कहती हैं आप ही मैं कुछ भी गलत नहीं करती थी, ना मैं इन चीज़ों में जाती थी और अगर इन चीज़ों में जाने वाली होती तो आज मैं खुद ना साहिबे औलाद होती। कहती हैं मैं अपनी इन चीज़ों को बहुत बुरा समझती थी। इनफैक्ट मैं नमाज़ पढ़ती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी और अल्लाह ताला से हमेशा यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता करे। कहती हैं आप ही मेरी कज़न आपकी फ्रेंड थी और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया जब मैंने आपसे अपने दिल के सारे हालात बयान किए क्योंकि मेरे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गई थी और मेरे मियाँ के घर जब से डिसेबल बच्चा पैदा हुआ था तब से ये यही नफ़रत रखते थे कि शायद मेरी बददुआ लगी है या मेरी वज़ह से कुछ हुआ है। कहती हैं कि आप ही वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, बहुत ज़्यादा दूर रहते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि बुरा सलूक करते थे।
कहती हैं पहले तो मैं प्यार-प्यार में इनके सारे काम कर रही थी, लेकिन कहती हैं आप ये बदतमीज़ी करते थे और बहुत रोब मुझ पर डालते थे। इनफैक्ट अपनी बीवी के भी सारे काम मुझसे करवाते थे। कहती हैं आप ही इनकी बीवी भी मुझे बुरा-भला कहती थी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले बच्ची मौजूद थी, जो कि बिल्कुल ठीक थी। मेरे मियाँ उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे, एहसास करते थे और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जैसे इनकी अपनी बेटी हो। कहती हैं, "आप ही फिर अल्लाह ताला तो अता करने वाले हैं ना, आप ही जो आपने मुझे तस्बीहात बताई थी और ख़ास तौर पे जो मुझे आपने आयत करीमा बताया था, जिसको मैंने रेगुलर बेसिस पे 1700 बार पढ़ना था।" कहती हैं कि आप ही मैंने जब से पढ़ना शुरू किया था, अपना ऑरा क्लीन किया था, अपने दिल को साफ़ किया था, हर तरह की नफ़रत को अपने से दूर किया था और कुरान पाक की सूरतें जो आपने आप ही मुझे बताई थी, मैंने वो पढ़नी शुरू की थी। कहती हैं, तब से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी मिलना शुरू हो गई थी। मेरे मियाँ का दिल बहुत ज़्यादा नरम होता जा रहा था। आप ये बात-बात पे मेरे साथ बदतमीज़ी किया करते थे, बहुत बुरा सलूक करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि मेरे पास जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। ना ही मैं जॉब कर रही थी और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी पे उस तरह तवज्जो दे पा रही थी, जिस तरह के औरत को देनी चाहिए। कहती मैं तो अपने आप से चली गई थी, जल कट के मैं बिल्कुल रह गई थी और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक मरीज़ाओं वाली ज़िंदगी बना लिया था। कहती है मेरा दिल मर चुका था, मैं कोई चीज़ नहीं पहनती थी, कोई खुशी नहीं मनाती थी और कहती हैं कि कोई भी ज़िंदगी में भी चाम नहीं था, बस खामोश से होके रह गई थी। अपनी बात किसी से नहीं कर पाती थी। जब मेरी कज़न ने देखा कि मेरे ये हालात हैं तो फिर उसने मुझे आप ही आपके बारे में बताया और आपने जो रहनुमाई मुझे दी, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कहती हैं कि आप ही मेरे मियाँ ने इस रात से भी पर्दा उठा दिया कि ये जो बेटी इनके पास मौजूद है, ये मेरे मियाँ की ही बेटी है। कहती हैं आप ही जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन हिल गई। कि एक इंसान इतना ज़्यादा सीक्रेट हो सकता है कि इतना अरसा किसी के साथ रहने के बावजूद भी अपना राज़ ना बता सके। और कहती हैं, "आप ही मैं तो धोखे की ज़िंदगी जी रही थी। मेरे दिल से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाले अल्फ़ाज़ निकलते थे। मैं बहुत ज़्यादा इनसे नफ़रत करती थी, बहुत बुरा-भला कहती थी और हर वक़्त का इनसे अजीब-सा मेरा ताल्लुक बन के रह गया था।" कहती, "पहले आप ही मैं इनकी मोहब्बत में पागल थी और अब मुझे इनसे नफ़रत होने लग गई थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इनके साथ रहूँ।" लेकिन शादी का इतना अरसा इनके साथ गुज़ार लिया था, कहती हैं कि अब मेरे लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरे बहन-भाई ऑलरेडी शादीशुदा थे, अपनी-अपनी फैमिलीज़ में थे और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा? लेकिन आप ही आपने मुझे बताया कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन ज़िंदगी लिखी होती है। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। शैतान के वसवसों में आके अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, बल्कि अपने रब के साथ अटैच होके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तकलीफ़ें, परेशानियाँ अल्लाह ताला के आगे कोई बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह ताला उनको आसानी में बदल दे। बस हमने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होना है, दुआ करनी है, अपने आप को क्लियर करना है, अपनी थॉट्स को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ़ को लेकर चलना है। कहती हैं, आप ही भी छोटी-छोटी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करती थी, आप मुझे उसके बारे में अच्छी गाइडलाइन देती थी और कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में आप ही आसानी आने लग गई। मेरी सोतन जो कि बहुत ज़्यादा नखरे वाली थीं और बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल करवाना जानती थी, कहती हैं कि आप ही जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो मेरे मियाँ को उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ी और कहती हैं कि वो अक्सर और बेशतर मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी और इनसे दूर-दूर रहती थीं। क्योंकि आप ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली में मौजूद थे, जिसकी वज़ह से इनका बच्चा डिसेबल था और ये खातून पढ़ी-लिखी खातून थी, ये शक-वहम में नहीं पड़ती थी, बल्कि मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा शक्की-वहमी थे। वो इस तरह की बातें किया करते थे कि मैं जादू तवीज़ करती हूँ या मैं बुरा करती हूँ या मैं बुरा सोचती हूँ या मैं बुरा ख़्यालात करती हूँ इनके बारे में और कहती हैं कि वो ख़ातून पढ़ी-लिखी थी, समझदार थी और कहती हैं अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानती थी। इसलिए ये उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनके साथ चलते थे। जब से उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी और ख़ास तौर पे कहती हैं कि वो अच्छी जॉब कर रही थी और उन्हें अक्सर और बेशतर आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता था। कहती हैं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शकी-वहमी थे, अब उनसे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग गए थे, शक-वहम उनके दिल में बहुत ज़्यादा चलने लग गए थे और आप ही सबसे बड़ी बात तब हुई जब मेरी सोतन यानी कि इनकी वाइफ़ दोनों बच्चों को छोड़कर इनको किसी और के साथ चली गई। कहती हैं ये तकलीफ़-देह लम्हा था मेरे मियाँ के लिए और कहती हैं कि इस वक़्त मेरे मियाँ को एहसास हुआ कि मैं ही उनके साथ रहने वाली हूँ, एहसास करने वाली हूँ और ख़्याल करने वाली हूँ। कहती हैं आप ही मुझे औलाद नहीं हुई थी, ये मेरा रब जानता था कि मुझे औलाद क्यों नहीं है। कहती है मेरे बस की बात नहीं थी, मैं खुद से बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ़ दुआ कर सकती थी, अपने रब से माँग सकती थी, अपने रब से इल्तिजा कर सकती थी और अगर वो नहीं दे रहा था तो कोई ना कोई तो उसकी हिकमत थी ना। कहती हैं अपी ये दोनों बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ वो आउट ऑफ कंट्री चली गई थी।
कहती हैं आप ही इससे पहले वो उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किया करती थी, इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करती थी, जिसकी वज़ह से इन्होंने गुस्से में आके उसे तलाक दे दी थी। और फिर कहती हैं कि उन्होंने बच्चों को भी साथ नहीं रखा, बल्कि बच्चे भी इनको दे के वो चली गईं, किसी और के साथ शादी कर कर। कहती हैं अभी जब से ये सारे मामलात हमारे घर में हुए थे, तब से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, उदास रहते थे। कहती हैं कि आप ही मैं भी तो इनसे मोहब्बत करती थी ना। आज इनका दिल अपनी मोहब्बत से टूटा है, तो इनको मेरा एहसास हुआ है। कहती हैं ये रब ही है जो इंसान के दिलों को नरम करता है, उसको आसानी देता है। और कहती हैं कि आप ही मैं इनके प्यार में इतना अरसा रोई हूँ। जब ये मुझे इग्नोर करते थे, जब ये अपनी वाइफ़ के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो कहती हैं मुझे आप ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। क्योंकि उनके साथ इनका टाइम बहुत अच्छा गुज़रता था और मेरे साथ हमेशा ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होते थे और अजीब-सा रवैया होता था। कहती हैं वो मोहब्बत मेरे हिस्से में नहीं थी जो दूसरियों को मिल रही थी। बस कहती हैं मुझे अब इस बात पे सब्र आ गया था कि मेरा रब बेहतर अता करता है। वो चाहता है अगर मुझे इस हाल में रहना, तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। कहती हैं कि आप ही मैंने अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया था और अल्लाह ताला से अटैच हो गई थी। अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह ताला से आसानी माँगती थी और अल्लाह ताला से ही अपने दिल की बात किया करती थी। कहती है अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ मेरे दिल की बात को सुना, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, सकून दिया और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की। कहती हैं आप ही वो खातून दोनों बच्चे मेरे हवाले करके चली गई थी और जिस बच्चे को डिसेबल समझती थी, कहती हैं कि आप ही मैंने उसके लिए दुआएँ करनी शुरू की, अल्लाह ताला से दुआएँ माँगनी शुरू की और ख़ास तौर पे आप ही आपकी बताई हुई आयत को जो कि आपने कुरान पाक में से मुझे बताई थी, कहती हैं आप ही मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, अपने बच्चे को दम करना शुरू किया और अल्लाह के करम से कहती हैं कि आप ही ये बच्चा बिल्कुल ठीक तरह से बात करने लग गया। कहती हैं वो डिसेबिलिटी जो है ये खातून ये कह के छोड़ गई थी कि इसके ख़ानदानी मसले-मसाइल हैं, यही सँभाले। तो कहती हैं कि आप ही आज मेरे रब ने मेरे नसीब में ये बच्चे कर दिए थे और अल्लाह ताला ने इन बच्चों को सेहतयाब कर दिया था। कहती हैं आप ही इनकी 3 साल की बेटी थी और ये बेटा 9 महीने का। कहती हैं कि आप ही वो देखने में थोड़ा-सा एबनॉर्मल लगता था, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी अता की और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। कहती हैं अल्लाह ताला का करम था, अल्लाह ताला अता करना चाहते थे। बेशक मेरा रब अगर मुझे इसी तरीके से औलाद अता करना चाहता था, तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। जिस बच्चों की माँ उनको छोड़ कर चली गई है, कहती हैं कि आप ही ये रब का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इनकी तरबियत करने की ज़िम्मेदारी अता की। कहती हैं वो खातून तो इतनी इन बच्चों से बज़्ज़न थी, इनको मुसीबत समझती थी और कहती हैं कि मेरे मियाँ को उन्होंने अपना एक लट्टू बना के रखा हुआ था, जो इनके हर काम करते थे। इनफैक्ट कहती हैं कि आप ही उनके पाँव तक मेरे हस्बैंड खुद धोते थे। कहती हैं अच्छी बात है जब बीवी तकलीफ में हो, परेशानी में हो तो मियाँ को यही करना चाहिए, लेकिन दूसरी का भी तो एहसास करना चाहिए था ना। अल्लाह ताला ने बैलेंस करने का कहा हुआ है, शादियाँ करने का अल्लाह ताला ने इतना नहीं कहा। जितना अल्लाह ताला ने दोनों के दरमियान में मोहब्बत, दोनों के दरमियान में बराबरी का हुक्म दिया है। लेकिन हमारे यहाँ मर्द ये समझ जाते हैं कि उनके दिल की तसल्ली, उनका सकून, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी सबसे बढ़कर है और दूसरों की ज़िंदगी चाहे ख़त्म हो जाए, चाहे वो मर जाएँ, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में गुज़ार रहे हों। लेकिन उसके लिए उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। कहती हैं आप ही जब मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई कि हर इंसान अपने लिए बेहतर सोचता है, अपने लिए बेहतर करता है, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाता है, तो कहती है तब से आप ही मुझे इनसे नफ़रत भी ख़त्म हो गई और इनके लिए मेरे दिल में कोई बुरा ख़्याल नहीं आता था। मैंने इन्हें सच्चे दिल के साथ माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता करे, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दे और मुझे सकून अता कर दे। कहती हैं आप ही सबसे बढ़कर मेरे लिए ज़िंदगी का वो खुशी का लम्हा था जब अल्लाह ताला ने मुझे अपनी औलाद से नवाज़ा। कहती हैं आप ही मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अल्लाह ताला के करम से साहिबे उम्मीद हो गई हूँ। और कहती हैं कि आप ही 16 साल के बाद उम्मीद का होना इंसान के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। कहती हैं आप ही मैंने इतनी ज़्यादा जद्दोजहद की, इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, परेशानियाँ बर्दाश्त की, 2 सौतनों को बर्दाश्त किया, अपने मियाँ के अजीब से रवैये को बर्दाश्त किया, इनकी इग्नोरेंस को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती वाला बेटा अता किया। कहती हैं आप ये मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को 2 सालों में बदल दिया। मैं इतनी तकलीफ़ परेशानी में रही, इतनी मुश्किलात में रही, कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये अल्लाह का करम है जब से मेरी समझ में इज़ाफ़ा हुआ, अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाया और ख़ास तौर पे आप ही अल्लाह ताला के प्यारे कलाम कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने की तौफ़ीक मिली, तो मुझे समझ आया कि ज़िंदगी क्या है? किस तरीके से इंसान ने ज़िंदगी को लेकर चलना है और किस तरीके से इंसान को आसानी मिल सकती है। कहती हैं आप ही आपका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे रहनुमाई अता की, आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और मुझे अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने का एक मौका मिला।
کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اور آپ کے حق میں بہت ساری دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ تھینک یو سو مچ میری سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت کو آپ سے دور رکھے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب کیسے عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی خدمات کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، انسان کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ آپ نے سچے دل کے ساتھ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کیا، اپنے ہسبینڈ کے بچوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کی خدمت کی، ان کے لیے جدوجہد کی، اپنے بچے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کے بچے کو صحت یاب کیا بلکہ آپ کو بھی صاحب امید کیا۔ کبھی کبھی نہ کسی کے نصیب سے کسی کو مل رہا ہوتا ہے، یہ بات انسان کو تب سمجھ آتی ہے جب انسان کی سمجھ بڑھتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو سیدھا راستہ نظر آئے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہا کریں، کبھی بھی نا امید نہ ہو میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کب عطا کرنا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ سال شادی کو ہو گیا ہے اور ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ پریشان نہ ہوا کریں، بس دعا کرتی رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ آپ کو کب کیا چیز عطا کرنی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز کس وقت بہتر ہوگی۔ تو نا امید نہ ہو، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل میں آسانی عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو آپ سے دور رکھیں گے۔ بس اپنے رب کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان الرحیم ہے۔ ان باتوں پہ جو لوگ سچے دل کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور وہ کامیابیاں پاتے ہیں۔ تو جی یہ تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔